اسلام آباد میں بننے والا مندر اور اسی دوران اسلام آباد میں گرائی جانے والی مسجد، یہی موضوع گزشتہ کئی دنوں سے ہر کسی کی زبان پر ہے۔ مندر کی تعمیر تو ابھی بہت دور ہے، مگر بنی بنائی مسجد کو شہید کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا یہ مسجد قبضے کی زمین پر بنائی گئی تھی؟ اس کے لیے بیرون ملک سے فنڈز بھیجے جا رہے تھے اور اس کے امام خطیب شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اعلیٰ درجے کے فلیٹس میں رہ رہے تھے۔ اس طرح کی کئی افواہیں گردش میں تھیں۔ کوئی اس کو مسلک کا شاخسانہ قرار دے رہا تھا تو کوئی حکومت کی دین دشمنی گردان رہا تھا۔ حقائق کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے تکبیر نیوز کی ٹیم کا مسجد کی جگہ پر پہنچنا ضروری تھا تاکہ اپنے ناظرین کو اصل حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے ماڈل ٹاؤن میں، اسی مسجد کے سامنے جس مسجد کو گرائے جانے کی خبریں سوشل میڈیا کے ٹاپ 10 میں شامل ہو چکی ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آیا ماڈل ٹاؤن میں جو مسجد ہے یہ طے شدہ پلان کے مطابق گرائی گئی یا کہ یہ اتفاق ہے۔ اس کے حقائق جاننے کے لیے ہم مسجد امام اور یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے سچ کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جامعہ مسجد توحید ماڈل ٹاؤن اسلام آباد کے خطیب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حافظ آصف نذیر ہے اور اس مسجد میں میں خطیب ہوں الحمدللہ۔ حافظ صاحب، کب سے خطیب ہیں آپ اس مسجد میں اور یہ مسجد کب سے قائم ہے؟ اچھی عرصہ تقریباً 10 سے 11 سال سے تو میں خطابت کے فرائض الحمدللہ یہاں سر انجام دے رہا ہوں۔ باقی جو اس مسجد کے بانی ہیں بابا جی محمد حبیب صاحب، وہ میرے بزرگ بھی ہیں، اور یہ مسجد 22 سے 23 سال پہلے قائم کی گئی ہے ادھر۔ تو ابھی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، سی ڈی اے کا اور انتظامیہ کا یا مسجد کی انتظامیہ کا سی ڈی اے کے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، کئی سالوں سے یہ ایک قدیمی مسجد ہے، میں پہلے آپ کو بتا دوں، کیونکہ سی ڈی اے کی پالیسی کے مطابق جس مسجد کو 9 سال گزر جاتے ہیں وہ ایک قدیمی مسجد کہلاتی ہے، اور یہ قدیمی مسجد اس کو تو میں نے کہا کہ 22 سے 23 سال ہو چکے ہیں، 22 سے 23 سال ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ محکمہ اوقاف سے ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ سی ڈی اے کو پہنچ چکا ہے، اور سی ڈی اے میں بھی کئی دفعہ جو یہاں کی انتظامیہ ہے انہوں نے درخواست دی ہے کہ ہمارا یہ رائٹ ہے مسجد، اور ہمیں جو ہے یہ آپ اس کا این او سی دے دیں، لیکن ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا گیا ہے۔ جس دن یہ مسجد کو شہید کیا گیا اس دن آپ کو کوئی انہوں نے انفارمیشن یا کوئی آپ کی انتظامیہ کو کوئی انہوں نے لیٹر یا کوئی چیز بھیجی تھی کہ ہم مسجد کے اس حصے کو شہید کریں گے، یا کیوں کیا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ جو حقائق ہیں وہ بتائیں۔ محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کارروائی، بلکہ ظالمانہ کارروائی جو ہے، اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی تحریری نوٹس، کوئی بات چیت ہمارے ساتھ نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، اس سے کچھ 3 ماہ کے لگ بھگ عرصہ پہلے ان کی ایک ٹیم آئی ہے، پیچھے جو واش روم کا ایریا ہے اور وضو خانے ہیں، انہیں کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ ختم کریں گے، اور آپ وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں جو لال نشان وہ لگا کے گئے ان کے ابھی بھی موجود ہیں، اور ہم نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کارروائی بھی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ مسجد کے ساتھ ملحقہ کوئی بھی یا مسجد کی جو ضرورت کا حصہ ہے کسی کو بھی ہم ڈھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن وہ ظالم جب کارروائی کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کوئی پیش کی اطلاع، کوئی نوٹس، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، اور جو انہوں نے گرایا ہے آپ نے خود سارا منظر دیکھ لیا ہے کہ وہ مغرب سائڈ سے اور محراب والی اور ممبر والی سائڈ سے بڑی بے دردی کے ساتھ مسجد کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ حافظ صاحب، سننے میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مسجد کے جو احاطہ ہے یا مسجد کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ شاید کچھ لوگوں کے جو زمین کے حصے ہیں وہ شاید جڑے ہوئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسجد انتظامیہ نے شاید ان پلاٹس کو بھی اپنی جو مسجد کی حدود اس میں شامل کیا ہے۔ یہ بات سچ ہے یا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی محترم، اس بات میں کچھ بھی سچائی نہیں ہے۔ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی جو باؤنڈری وال تھی اس کے اور جو ایک درمیان میں راستہ گزرا ہے کتنی جگہ ہے،
हाँ जो रास्ते की मगरिब जानिब कुछ प्लॉट्स हैं और वो उस तरह पड़े हुए हैं, हमने उनमें से कुछ भी नहीं लिया और ना ही हमारा कोई इस तरह का इरादा है। अभी आपकी इंतज़ामिया के एक साहब हमें एक वो लिस्ट दिखा रहे थे जो मॉडल टाउन के लिहाज से CDA ने जारी की, जहाँ पर जो नजायज़ तजव्ज़ात थे उनके बारे में, उसमें मस्जिद का जिक्र तो हमें नज़र नहीं आया। आपने वो लिस्ट पढ़ी है? जी मैंने वो लिस्ट पढ़ी है। मोहतरम बात ये है कि वो बार बार यहाँ जो साहिब कार्रवाई के लिए आए थे, जिनसे मैंने अल्लाह के वास्ते भी दे के कहा था कि ये जुल्म ना करें, तो उन्होंने कहा जी हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उनसे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर ही आप जो है ना, हमारे पास भी वैसे मौजूद है, उनसे कहें कि उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या स्पेशली इस मजलूम मस्जिद का ऑर्डर है आपके पास? बस इसका नाम ही नहीं है उसमें। विदाउट नोटिस, क्योंकि आपकी मस्जिद में ये जो मस्जिद को शहीद करने की कार्रवाई की है, आप किसको इसका ज़िम्मेदार समझते हैं? देखिए जी, जहाँ तक इमरान खान साहब या बड़े लीडर हजरात हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन तक ये खबर पहले है या नहीं है, लेकिन यहाँ शाह से ज़्यादा शाह के जो कारिंदे होते हैं वो वफ़ादारी का सबूत देते हैं। मैं तो सरासर इसको ज़िम्मेदार CDA को ही ठहराता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। सोशल मीडिया पर अभी जो ये टॉप ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि एक दफ़ा वो कह रहे हैं कि मंदिर को गिराया जा रहा है, दूसरी दफ़ा मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, मंदिर को बात किया जा रहा है। तो आप समझते हैं इसमें कोई तीसरी पार्टी है या कोई ऐसे लोग हैं जो इंतशार फैलाना चाहते हैं इस मामले पे? देखिए जी, एक है जिस तरह आपने एक मंदिर की बात की है और उन्होंने वहाँ कहा है कि अक़लियतों के हुकूक़ हैं जी, मसले की क्या बात है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन जिस वक्त हम ओवरहाल इस सूरत हाल को देखते हैं, यानी हुकूमत का तर्ज़ अमल देखते हैं, तो आप देख लें कि अक़लियतों के लिए ठीक है, वो भी हमारे मुल्क के बासी हैं, उनके लिए जो नरम गोशा है वो होना चाहिए, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। लेकिन हमें यहाँ सिखों के लिए तो एक नरम गोशे इनके दिलों में नज़र आते हैं, ईसाइयों के लिए भी नज़र आते हैं और यहूदियों के लिए भी नज़र आते हैं, और जिनके लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं उनके लिए भी नज़र आते हैं। लेकिन क्या हमारे पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड नहीं है? क्या हमारा कोई हक़ नहीं है? हम पर ये जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े गए हैं? हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये ज़ालमाना कार्रवाई जो है ये इसका नोटिस लिया जाए भरपूर, और जो हमारा बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है उसको भी पूरा किया जाए। बाकी रहा मामला दिलों का, जो उन्होंने हमारे दिल तोड़े हैं या आवाम को परेशान किया है, यहाँ उन्होंने औरतों और बच्चों को जो रुलाया है, यहाँ जो उन्होंने बूढ़ों को तड़पाया है, इसका तो हिसाब वो अल्लाह को देंगे। जी हाफ़िज़ साहब, ये जो बैरून मुल्क से फंडिंग की जो ख़बरें हैं, ये कहाँ तक सच हैं? इनके अंदर कहाँ तक सदाकत है? अल्लाह ताला का फरमान है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, इस तरह की कोई भी ख़बर उसकी में कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल सरासर झूठ पे और प्रोपेगेंडा की बुनियादों पे इस तरह किया जा रहा है। जो लोग कर रहे हैं ये बातें इस तरह की, उनको अल्लाह से डर जाना चाहिए। अगर उनमें से किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। दूसरा हाफ़िज़ साहब ये बताएं कि किसी कोई और तंजीम या इदारा या फ़िका या कोई ऐसा है जो जिसकी ख्वाहिश पे या जिसकी रंजिश पे ये जो हालात पैदा किए गए हैं? जी ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहाँ जितने मसालिक के लोग हैं हम उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। आज तक जब से मैं इधर ख़तीब हूँ, किसी भी मकतबा फ़िक्र के ना हमने कोई इंसल्ट की है, ना बेइज्जती की है, ना लड़ाई की है। और यही वजह है कि जिस वक्त ये ज़ालमाना कार्रवाई मस्जिद पर हुई है तो वो हमारे भाई जो है वो शाना बशाना हमारे साथ खड़े हुए हैं। बल्कि यहाँ के बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना सनाउल्लाह गालिब साहब और उनके बेटे असदुल्लाह गालिब साहब और उनके मुदर्रिस ज़हीरुल इस्लाम साहब और यहाँ आड़ा के एक नौजवान उस्मान राजा साहब, मैं और मेरे बेटे अहमद और मोहम्मद इकट्ठे एक हवाला मतलब बंद किया गया और हमें पकड़ के ले गए। अगर हमारा किसी के साथ जमाती कोई इख्तिलाफ होता तो क्या वो लोग मतलब इस तरह आगे आते थे? वो लोग सब अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आए थे। मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो तेरे घरों की हिफाजत करते, अल्लाह तू उनके घरों की हिफाजत फरमा। सोशल मस्जिद के खतीब साहिब के बाद इमाम मस्जिद ने भी अपने ऊपर बीतने वाले हालात से आगाह किया। मस्जिद तौहीद, जामे मस्जिद तौहीद के जो इमाम हैं, उनकी जो रिहाइश गाह थी
वहाँ पर जब ये सीडीए की टीम यहाँ पर आई और मस्जिद को जो शहीद किया और आपकी जो रिहाइश गाह है उसको हमसार किया, तो इसमें आपकी आंखों ने क्या मंजर देखे, ज़रा अपनी ज़ुबानी बताइए। जी, मैं तो उस वक्त ख्वाब देख रहा था जब सीडीए की टीम ने यहाँ पे हमला किया है। मैं इसे हमला कहूँगा क्योंकि अगर कोई ऑपरेशन है या कोई भी काम वो करना चाहते हैं तो हर एक चीज़ की कोई ना कोई इतला होती है। सड़क पे चलते हुए अगर हमारी गाड़ी के सामने कुछ जानवर आ जाए तो हम उधर भी हारन पे जाके उसके साइड पे करते हैं, लेकिन इधर हमारे ऊपर कोई इतला या कोई ऐलान, कोई हूटर नहीं बजाया गया। हम सो रहे थे, अचानक से ठा ठा की आवाज़ें आने लगी हैं और मकान गिरने लगे हैं। तो मैं जल्दी से उठा हूँ। मेरी अहलिया ने कहा कि बाहर देखें, कुछ ख़ास हो रहा है। मैंने देखा ये रोड चल रहा है तो शायद रोड पे कोई ट्रालर गुजर रहा होगा, कोई हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, तो छोड़ें, सो जाएं। तो उसके बाद दोबारा से मैं ठटका तो मैं बाहर गया हूँ तो हमारी बाउंड्री गिर चुकी थी और क्रेन हमारे सरों पे पहुँच चुकी थी। तो मैं फौरी इधर से गेट से बाहर निकल के मैंने अपने दोनों हाथ बुलंद किए हैं और उन्हें कहा रुक जाइए। तो उन्हें फिर पता चला कि यहाँ पे कोई बंदा भी रहता है। अगर मैं उनको मदद की फरियाद ना करता तो शायद हम इधर ही गिरा दिए जाते और हमारा नामो निशानी मिट जाता इधर से कि इधर भी कोई बंदा रहता है। हाफिज साहब, क्या टाइम था जिस वक्त ये कार्रवाई हुई? ये तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम था जब वो इधर आए हैं। तो विदाउट नोटिस वो लोग आए थे, तो उन्होंने देखा था कि अंदर ये जब कमरे आपके गिराए गए हैं, ये रिहाइश का, ये मैं देख रहा हूँ कि पंखे जो है वो उनके पर तक फोल्ड हो चुके हैं और ये चौगाठें जो लोहे के गार्डर हैं वो भी बुरी तरीके से ज़मीन पर गिरे पड़े हैं। तो उन्होंने ये इस चीज़ की तस्दीक कर ली थी कि अंदर कोई जानी नुकसान होने का कोई ख़तरा या अंदेशा तो नहीं है? असल में मैंने बताया आपको कि जब मैंने उनको बुलाया है कि ठहरिए, मैं अभी नहीं, फैमिली के साथ यहाँ पे रहाइश पजीर हूँ, तो फिर उन्होंने ऑपरेशन रोका है और मुझे 5 मिनट की मोहलत दी है कि आप फौरी तौर पे इधर से निकल जाएं। मेरी अहलिया बीमार थी तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें नीचे उतारा और साथ में उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट में जो भी अपना कीमती सामान है, कोई सोना चांदी है, कोई मोबाइल है, वो उठा लें, बाकी आप बाहर निकल जाएँ। तो मैंने, जाहिर बात है, हम ऐसे लोग तो नहीं हैं जो बड़े बड़े मोहल्लों में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टर हैं, ये क्वार्टर हैं जिन्हें लोग कहते हैं जी ये बुलंदो बाला रहायशों में रहते हैं। हम तो कोई इतने बड़े लोग नहीं हैं, तो हमने, जाहिर बात है, हमारी कोई 10 रुपए की चीज़ है वो भी हमें दुख देती है, लेकिन उन्होंने जो है ना हमारी चीज़ों के साथ जो सलूक किया, बहुत दिल खून के आंसू रोया है। हाफिज साहब, ये जो तमीर का काम जारी है मस्जिद का, हमने देखा कि चारों ओर मस्जिद का तमीर का काम दोबारा जारी है, तो क्या ये सीडीए तमीर करवा रहा है मस्जिद की या मस्जिद इंतज़ामिया अपने तहत आप इसको जो है ना वो अमली जामा पे ना रही दोबारा? असल में बात यह है, मीडिया पे भी हमने बहुत सारी ख़बरें सुनी हैं कि लोग, कुछ शरपसंद अनासर ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह के इस घर की मुहिम को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अल्लाह के ये घर आबाद ना हो। वो सोशल मीडिया पे भी ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने इसकी तामीर का वादा कर लिया है और पैसे वगैरह सारे अदा कर दिए हैं। ये सारा झूठ है, बेबुनियाद है, अफवाह है। मौका पर मौजूद ऐनी गवाह क्या कहते हैं? हम बात करेंगे किसी ऐसी ऐनी शाहिद से कि जब वो सीडीए की टीम इस हाते में या इस एरिया में दाखिल हुई तो उन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब ये मस्जिद को शहीद किया जा रहा था? जी, मैं उसे टुरिया आना था कि बाहर रो रहे हैं बच्चे जिहड़े थे अफसर पढ़ते थे, 2 बजे को मदरसे के जो बच्चे हैं, 20-25 बच्चे रोंदे पे आंदे चाचू की हो गया, चाचू की हो गया, मां की हो गया। अगे क्रेन रब ने ऐसा वेखा, बच्चे बुढ़े भी रोई जाए, टाइम मारी जा रहे हैं, बुढ़े भी, साढ़े पर मैं भी टाइम मारना पे। अगे वेखा क्रेन का रब ने दोबारा पैर तोड़ के फना कर देता है, पैर टूट गया, फिर क्रेन जाके खली। अच्छा, नहीं, किसका पाइप टूट गया था? जो क्रेन जो अच्छा, जो क्रेन यहाँ पर मस्जिद को शहीद करने आई थी, आप कह रहे हैं कि उसका पाइप टूट गया था? उसका पैर टूट गया था, फिर जाके खली है क्रेन। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई रोक दी? फिर उस कार्रवाई रोकी, फिर साढ़े को अल्लाह ने कोई ना दया दी, फिर गए। ख़वातीन हज़रात, ये जब ये किस्सा बयान कर रहे थे तो इनकी आंखें मैं देख रहा था कि नम हो रही थी जब ये कह रहे थे कि बच्चों ने चीखो पुकार जो शुरू की सिर्फ इस मोहब्बत से कि ये उनकी एक दरसगाह है। ये वो घर है जहाँ से बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, इवन यहाँ पर मस्तूरात जो ख़वातीन हैं वो भी इल्म की रोशन से, इल्म की जो रोशनी है उससे खूब फ़ायदा उठाती थी।
CDS مسجد کا کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.